All right, Ji. Is this slide visible to you? Yes, sir. Okay. All right, Ji. We start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about forward kinematics, which we started in this week. And today we will be talking about Danabit-Hartenberg parameters, which are also called DH parameters. And we have talked about them at length in yesterday's lecture, and today we are going to calculate these parameters, and then we are going to fill those in the DH table, which will finally give us a transformation matrix to know the forward kinematics of a robot. What we just a recap for what we have been studying. In fact, why are we interested in forward kinematics? We are interested in forward kinematics because if we have a let's see if we have a manipulator and which is working in a space, in a 3D space, and it has one link, then it has let's see, it has a joint here, then it has a joint here, then here, and then finally you have a gripper at the end of the robot. So what we are interested in to know that how can my robot reach a place in space. Let's see if these are the x and y axis. I'm talking about uh, a planar robot here. A planar robot means that this is a robot which is working in a plane. So I want to know these angles. This is, let's see, theta 1. This is, let's see, theta 2. And this is theta 3. Let's see if I sorry, if I make it like this. So this would be theta 3 like this. So I am interested to know these angles. I am interested to know these angles so that by giving these angles to my um, rotational joint, I can reach a point in space which is in the center of this gripper, and has x and y coordinates. So this is for a planar robot. So you people might be thinking कि यार हम इतना मैथ जो किए जा रहे हैं और हम ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस निकाले जा रहे हैं, कुछ एंगल्स की बात कभी करते हैं. So what we are going to do at the end of this course, what would my robot will be able to do is that whenever I give it certain angles, so it should be able to reach a point in space. जैसे कि मैंने यहाँ पे mentioned that if it's a planar robot, so it should reach a point xy in a 2D plane, and if it's a three-dimensional plane, then it should be able to reach x, y, and z. Why do we do this? Is because while we are working in the industry, so we actually program our robot in terms of these angles and tell the robot to reach at a certain place and carry out a certain task. And then we move our robot from one place to another, and it may carry out the task while moving from one place to another. So this is what we are doing, and now we are actually doing the mathematics behind all this. What is which is the final product, which is going to be the final product of our course, that we should be able to calculate the position, or vice versa, that if you are given a position, so you can calculate back the angles, which is the inverse kinematics. So we started off with rotation matrices, then we went into the transformation matrices, and now we are calculating those parameters which are essential to know the forward kinematics of our robot. So this is the
This is the summary which we have gone through this course until now. So what we did yesterday, it was we talked about the calculating the DH parameters. So coming towards DH parameters, the first step was to link attachment. So first thing was the link attachment, and this was actually the linking of two or one link with the link which is in front of it and the link which is behind it. So forward and reverse. So दोनों links के साथ हमने ये बातचीत की थी, and this was the summary which gave us the idea, or which enabled us to attach our coordinate systems with the links. So this was the summary which we carried out all this yesterday, and then after attaching all this, then we measured the parameters of those links and frames. And just a reminder that this was the summary, that the distance from A1 actually was the distance from Z1 to Z measured in xi. So this was termed as, A1 was termed as what? जी, A1 जो है, इसको हमने क्या नाम दिया था? What is A1 in this? Link length. Link length, shabash. So this is the link length. What was alpha I? Link Alpha twist. I was link twist. Very good. And then what was DI? Offset. Offset. Oh, This link was the link offset. Very good. So we had three parameters which were with the link, associated with the link. And what was theta? Theta was the joint angle. Joint angle. Very good. So shabash. So theta was the joint angle. So these are the parameters which we came across yesterday, and we saw that there are three parameters which are associated with the link, and one parameter is associated with the joint. So today what we are going to do is that we are going to calculate these parameters for certain robotic configurations, and that will give us a practice and a knowledge that how these parameters can be calculated. So let us first talk about a planar robot. A planar robot means that this robot is working in two dimensions. So its third dimension. So we are starting with a simpler example. So if we look at this robot which is shown on the left side of your slide, so it's a three-link planar robot. So its first link is L1, its second link is L2, and its third link is L3. So this is the first link, second link, and third link. अच्छा, अगर if you now look at this, so the third link जो है वो that only gives you a position. वो आपको कोई ओरिएंटेशन नहीं दे रहा जो थर्ड लिंक है. अगर आप इसको गौर से देखें तो जो थर्ड लिंक है इट ओनली गिव्स यू अ पोजीशन ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इन द सेंटर ऑफ द ग्रिपर. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक लिंक है लास्ट वाला, दिस इज गोइंग टू ओनली गिव अस अ पोजीशन. हाउएवर जो पिछले वाले लिंक्स हैं दे आर अटैच्ड विद रोटेशनल जॉइंट्स और रेवोल्यूट जॉइंट्स. सो इसलिए ये आपको एक रोटेशन भी देंगे, एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड RRR or 3R mechanism, because it has all the joints as revolute joints. So this is called RRR. Okay, so let us now see the schematic representation of this robot. So the schematic representation is going to look like this. So this is the summary which the 6 points which we discussed yesterday. This is the I have put them here. So one by one we have to actually
apply these points to this schematic presentation so that we are able to find out the DH parameter. So do you remember what we need to do first? We actually needed to identify the joint axis, and then we needed to find out these and draw a line with this. So you remember this, we did this. So this is joint number 2 and this is जॉइंट नंबर 3. ये थोड़ी सी लाइंस मेरी टेढ़ी हो गई हैं, ये इनफैक्ट ये जो ब्लैक लाइन है इसके साथ से इसको गुजरना चाहिए. सो दिस वाज पहला पॉइंट ये था. फिर हमने क्या किया था कि इनके कॉमन परपेंडिकुलर्स, आपको याद होगा हमने कहा था कि इनके कॉमन परपेंडिकुलर्स क्या होंगे, या उससे पहले अगर आप चाहें तो अब इन्हीं को कोई एक Z1 Z2 और इसको Z3 भी कह सकते हैं. ठीक है. अच्छा, देन कॉमन परपेंडिकुलर्स आपको याद होगा. कॉमन परपेंडिकुलर्स हमने इनके डिफाइन किए थे कि कॉमन परपेंडिकुलर इन दोनों के दरमियान क्या था, जो कि इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो. ये जो मैंने ग्रीन लगाया है, सो ये कॉमन परपेंडिकुलर इसका हो गया, ये कॉमन परपेंडिकुलर इनका हो गया, Z1 Z2 और Z3 Z4 का. ठीक है. फिर हमने Z1 Z2 एक्सिस दे दिए थे एंड देन वी सेड कि ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है इसके ऊपर वी विल असाइन एक्स एक्सिस. ये भी आपको याद होगा. सो हमने क्या कहा था कि हमने पहले ये कहा था कि हम एक Z एक्सिस जो है उसको Z एक्सिस को हम एक डिफाइन कर लें और उसका एक ओरिजिन डिफाइन कर लें. तो हमने ऐसे करके Z एक्सिस, इसका ओरिजिन डिफाइन किया था और इसके साथ हमने फिर x को जोड़ा था. इसी तरह हमने z का ये वाला ओरिजिन डिफाइन किया था और इसी तरह हमने Z3 का ये ओरिजिन डिफाइन किया था. और यहाँ से जो हमने इसके साथ ये ग्रीन है इसको हमने, अगर ये Z1 था तो इसको हमने x1 कहा था, Z2 था तो इसको x2 कहा था. और सिंस ये अगले वाला सिर्फ एक जॉइंट, आगे जॉइंट नहीं है तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं करें. हाउएवर अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे Z4 को डिफाइन कर सकते हैं, बट दैट विड ओनली गिव अस इन फैक्ट a position, it will not give us any orientation. ठीक है. सो अब अगर मैं इस स्कीमेटिक डायग्राम को वापस लेके जाऊं अपने प्लेनर रोबोट के ऊपर जो कि लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, सो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि the z axis would be coming out of the slide, ये वाला और ये. ठीक है. सो मैंने ये जो रेड आपको इस वक्त बना के दिखाया है, दिस इज द z axis which is coming out of the plane or out of the slide. And then what would be our x axis, जो कि मैंने ग्रीन कलर में बनाया था. x axis would go the perpendicular distance between the two z's, जो कि will go along the length of the ऐसे. So this is x1, this is x2 और z जो है वो मैंने आपको बताया इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड. ठीक हो गया. यहां तक कुछ रिलेट हो रहा है जो हमने कल पढ़ा था और जो हम आज बात कर रहे हैं. आर यू एबल टू रिलेट इट? Yes, sir. ओके, जबरदस्त. सो नाउ वी हैव z. हमने जो फ्रेम असाइन कर दिया है टू जॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3. सो द z इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन और x जो है वो प्लेन में है. और अगर इसके साथ अब मैं y भी लगाना चाहूँ तो लेट मी जस्ट सी, जैसे हमने कहा था कि हम इसके साथ अगर एक y को अटैच कर भी दें और ना भी करें तो कोई उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. उसकी वजह क्या है कि y जो है वो इसमें यूज़ नहीं होता, बट स्टिल अगर मैं 3 बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ इसको y1 का नाम दे देता हूँ. यहाँ जो x2 के साथ है, सॉरी, सो इसको मैं इसका y2 इधर ले जाता हूँ और ये बाहर की तरफ आ रहा है, z जो है बाहर की तरफ आ रहा है.
सो अब ये जो कुछ मैंने इसके ऊपर बनाया है, मैं इसको एक समरी पे अगली स्लाइड में ले जाता हूँ। तो ये आपको वो अब समरी नज़र आ रही है कि जहाँ पे मैंने x1, x2 और x3 इन तीनों को मैंने सॉरी तीनों फ्रेम्स को जो कि फ्रेम ए, इसको फ्रेम 1, 2 एंड 3 हम कहेंगे. सो वी हैव एक्चुअली 3 frames with us which we have put on each joint. So this is, we have frame number 1, then frame number 2 and then frame number 3, which we have assigned to all these joints. और ये आपको अब समझ आएंगे. And then हमारा लास्ट पॉइंट क्या था कि we need to put a base frame जो कि जीरो फ्रेम जिसको कहा जाता है. सो हमने एक जीरो फ्रेम भी आपको नजर आ रहा है कि इस के अंदर हमने एक जीरो फ्रेम जो है उसको भी हमने इसके साथ ऐड कर दिया. अच्छा, व्हाई डू वी ऐड दिस जीरो फ्रेम? वी ऐड दिस जीरो फ्रेम बिकॉज जो हमारा लिंक 1 या फ्रेम 1 है उसका एक रिवर्स या उसका पीछे एक रेफरेंस की हमें जरूरत होती है जब भी हम ये डीएच पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. सो इसलिए वी असाइन अ बेस फ्रेम आल्सो which is static, which does not move, and it can be placed between a static platform and the first joint. उसकी जो एक आपस में लिंक बनता है उस पर कहीं भी प्लेस किया जा सकता है. So if I look at here now, so you would see that the frame 0 and frame 1, they are coincident. They are at one place, but they only differ in orientation. So their placement is the same at the same place, but their orientation is different. So x0 frame, so that means that there is a difference of orientation between 0 and 1 frame with an angle theta. So अगर मैं इसको यहाँ इस तरह से देखूं, so ये एक एंगल थीटा 1 है. इसी तरह this is theta 2 and this is theta 3. ठीक है जी, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है सर. क्लियर है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से डीएच पैरामीटर्स के अंदर डालना. सो सिंस वी हैव 3 जॉइंट्स, सो ये देखेंगे इस तरह से वी मेक अ मैट्रिक्स जिसके अंदर हम I is the joint, so we have 1, 2 and 3 joints. तो ये जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे उतने नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे या लिखने पड़ेंगे. लेट्स कॉल मेक इट लाइक दिस, that if we want to make, when we are making a DH parameter table, so the number of joints are denoted by I, and with all these I there are axes, और ये आपको यहाँ पे नजर आ जाए. अब देखें, जब मैं जॉइंट 1 की बात करूंगा तो उस वक्त मैंने क्या करना होगा. लेट्स सी, मैं इसी की बात करूं. सबसे पहले मैं अल्फा I minus 1, आई वांट टू कैलकुलेट दिस फॉर जॉइंट नंबर 1. सो मुझे क्या चीज चाहिए? लेट्स सी, अगर मैं अल्फा I minus 1 करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि I की वैल्यू अगर 1 है तो मुझे एक्चुअली अल्फा 0 चाहिए, और अल्फा 0 जो है वो एंगल किसके दरमियान होगा? I माइनस, ठीक है. सो I minus 1 मुझे चाहिए. सो ये जो अल्फा I है ये एक्चुअली I minus 1 हो जाएगा. तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी Z0 एंड दिस विल बी Z1. ठीक है. तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो एंगल बिटवीन Z0 एंड Z1 क्या होगा? एंगल बिटवीन Z0 एंड Z1 which is measured in the direction of xi. It will be 0 because x1, Z1 और Z2, Z0 और Z1 दोनों इस जगह पर मौजूद हैं and they are coincident. So alpha I minus 1 will be 0. So ये मेरा पहला पैरामीटर हो गया. Then AI minus 1. So AI क्या है? लिंक लेंथ है.
सो आई माइनस वन मीन्स के ये मुझे आई की जगह आई माइनस वन डालना है, आई मेरा वन है तो ए जीरो, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन जी जीरो एंड जी वन विच इज मेजर्ड अलोंग एक्स जीरो. सो सिंस z1 और z0 दोनों कोइंसिडेंट हैं तो इसका मतलब है देयर इज नो लिंक लेंथ इन्वॉल्व इन बिटवीन. देन डी पे आ जाएं. सो I is 0 तो x minus 1 and x1 measured along z1. सो एक्सिस के दरमियान x1 और x0 इनके दरमियान z की डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस है. सो सिंस देयर इज नो ऑफसेट तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मेरे पास 0 आ जाएगा. So I have the offset also as 0 and but थीटा जो है वो आप देखें कि आपने z के अराउंड z के अबाउट आपने मेजर करना है और x0 और x1 के दरमियान. सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान x0 और x1 के दरमियान z is coming out of the board. सो z के अबाउट there is an angle theta 1. सो ये मेरी आप देखें ये पहला जो जॉइंट है ये उसके मेरे पास पैरामीटर्स यहाँ पे आ गए. लेट्स गो ऑन टू द सेकंड जॉइंट. सेकंड जॉइंट पे क्या होगा कि हम अब फ्रेम वन और फ्रेम टू के बारे में बात करना शुरू कर देंगे. सो जो टू के ऊपर मैं लिखूंगा सो दिस विल अगर मैं इसको तो दिस विल बी एक्चुअली 0 to 1, दिस इज 1 to 2 एंड दिस इज 2 to 3. ठीक है जी, ये ज़हन में रखना है कि जब मैं वन की बात करता हूं तो मैं उसको 0 से 1 के दरमियान देख रहा हूं, जब टू की बात करता हूं तो उसको 1 से 2 देख रहा हूं, जब 3 की बात करता हूं तो उसको 2 से 3 देख रहा हूं. तो अब जरा ये देखिएगा कि जो सेकंड रो है मेरी वो कैसे है. पहली वही चीज अल्फा आई माइनस वन जो कि 2 है तो 1 z1 और z2 के दरमियान डिस्टेंस, z1 और z2 के दरमियान सॉरी z1 और z2 के दरमियान एंगल अल्फा की बात हो रही. सो z1 और z2 के दरमियान एंगल विच इज मेजर्ड अलोंग x1. सो z1 और z2 में चूंकि कोई लिंक ट्विस्ट शामिल नहीं है, ये लिंक ट्विस्ट है हमारा अल्फा. सो ये चूंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है और दोनों z1 और z2 इन दोनों के दरमियान अगर जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि ये ऐसे हमने देखा था कि ये दोनों एक z0 z1 है और दोनों स्ट्रेट हैं, दोनों पैरेलल हैं, देयर इज नो लिंक ट्विस्ट लाइक दिस. सो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 है. इस कंडीशन में द एंगल बिटवीन देम इज 0, बट इफ वी हैव अ लिंक ट्विस्ट लाइक दिस देन वी हैव एन एंगल अल्फा बिटवीन दीज टू व्हिच इज कॉल्ड लिंक ट्विस्ट. बट सिंस इन दिस केस वी हैव these two in parallel, so that is why we will have a 0 value for alpha for joint 2. Then जो next is link length. So link length जो कि A1 है, so this would be क्या होगा Z1 और Z2 के दरमियान measured along X1. So Z1 was here, Z1 was here, Z2 was here, and the distance between them along x-axis is this. ये वाला distance है, which is equal to its length of the link, which was L1. So here we will have L1 written here. Then again same case है, there is no offset because it's a planar robot, so we will not have any offset between two Z's, and the angle between this x2 angle between x1 and x2 which is given by this, so this will be theta 2. so ये theta 2 जो है ये आपको यहाँ पे नजर आएगा. ठीक हो गया. देन 2 to 3 में आ जाएं. सो 2 to 3 में क्या है, अगेन z1 z2 के दरमियान कोई ट्विस्ट नहीं है, लिंक ट्विस्ट नहीं है, बट z1 और z2 के दरमियान जो एक लिंक लेंथ है वो इन्वॉल्व है विच इज L2. इन दोनों के दरमियान कोई ऑफसेट नहीं है, सो दिस इज 0, और इन दोनों के दरमियान एक एंगल जो है वो थीटा 3 है. ठीक है जी, ये वाली बात समझ आती है. Yes, So sir. this is how we actually make the DH table. अच्छा,
हम आज डीएच टेबल से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाने की बात नहीं करेंगे. वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट वीक कि हम जब एक रोबोट का डीएच टेबल बनाएंगे, फिर उससे ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे और फिर उससे भी कैलकुलेशन करेंगे. सो ये यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो मैं अगला मूव करता हूँ अगली जगह पे, और एक या दो एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं. उसमें हम शायद इतनी डिटेल में ना जाएं, बट दैट यू गिव यू एन आइडिया एंड अ प्रैक्टिस. So are you clear until here जी? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. Okay, so that's great. So we move forward and now we are going to talk about another configuration which is 3 degree of freedom. It's not a planar robot and it is called RP and R mechanism. So we have actually a revolute joint here. We have a revolute joint here. We have a planar joint here and we have a revolute joint here. ठीक है. अब इसके साथ अगर मैंने इसकी स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है तो वो ये नजर आ रही है. दिस इज आर, ये वाला जो है आपको ये रोटेशनल जॉइंट है, ये प्रिज्मेटिक जॉइंट है और ये फिर रोटेशनल जॉइंट. अगेन हम इसमें हमने करना वही है कि हमने इसके साथ क्या करना है, हमने इसके साथ असाइन करने हैं लाइंस. सो पहली तो हमने ये लाइन असाइन कर दी. अब आपको पता है ये रेवोल्यूट जॉइंट जो इसने इस तरीके से मूव करना है, ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है. तो हमने इसके साथ जो लाइन है वो इस तरह से असाइन कर दी. देन इसके साथ एक आपने जॉइंट है आपका जिसके अंदर कि इसके साथ आपने एक लाइन असाइन करनी है, तो इसके साथ हमने ये लाइन इस तरह से असाइन कर दी. अब हम इसके दरमियान जो वो डिस्टेंसेस हैं और इनके दरमियान जो हम दोनों, अब देखें ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं. अगर आप देखें सो ये जो आपका Z1 और Z2 है, सो लेट अस गिव दीज डायरेक्शंस. सॉरी, सो सो ये मैंने इसको, अगर मैंने Z1 इसको दिया है नाम, और मैं जी जी कुछ सवाल है? नहीं, आपकी आवाज कट गई. काइंडली आस्क मी अगेन. आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई. अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो. सर किसी के माइक में डिस्टरबेंस थी शायद. ओके ओके. सो अच्छा, सो हमने ये Z1 यहाँ कर दिया और हम इसकी मूवमेंट इस तरफ से लेते हैं एंड वी से कि ये Z2 इज इन दिस डायरेक्शन. सो इसको हम Z2, अच्छा ये कन्वेंशन अब आप खुद भी ले सकते हैं. Z2 Z1 सिर्फ ये होगा कि अगर आप ऑपोजिट कन्वेंशन ले लेंगे तो आपके वो जो एंगल्स हैं या लिंक की जो लेंथ्स हैं जो कि x1 या उसकी डायरेक्शन में जानी थी वो माइनस में आनी शुरू हो जाएंगी. बट फाइनली यू विल रीच द सेम आंसर. आप ये अपनी कन्वेंशन को जिस तरह भी ले लें. तो मैं जो भी कन्वेंशन ले रहा हूँ, मैं इसमें Z2 को इस तरफ मैंने कंसिडर कर लिया है. हाउएवर अगर आप चाहें तो Z2 को लेफ्ट की तरफ भी ले सकते हैं, और इसी तरह मैंने जो Z3 है उसको इस डायरेक्शन में ले लिया. सो अब लेट्स सी, मैं इसको जरा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. सो आपको ये देखिए कि 3 फ्रेम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. 3 फ्रेम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. दिस इज फ्रेम नंबर 1, this is frame number 2 and this is frame number 3. अच्छा, बेस फ्रेम किधर है? अब चूंकि ये देखें, ये Z2 को मैंने इस जगह पे लिया है और जो जीरो फ्रेम है उसको कोइंसाइड कर दिया है विद Z1. लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जो जीरो फ्रेम है वो जीरो फ्रेम इसके साथ कोइंसिडेंट है. it does not translate with respect to, 0 does not translate with respect to 1, but it rotates. So 1
frame rotates with respect to 0. So अब अगर मैं ये कन्वेंशन जो मैंने अभी ये ऊपर लिखी हुई है इसको मैं फॉलो करूं, सो 0 और 1 के दरमियान क्या होगा, देयर इज नो लिंक ट्विस्ट, देयर इज नो ऑफसेट, sorry, there is no link length because ये दोनों same है, then there is no offset but there is an angle theta 1. Now talk about 1 and 2, 1 to 2. अब देखिए Z1 और Z2, ये देखें जरा गौर से, Z1 और Z2 जो है ये दोनों एक ओरिएंटेशन में नहीं है, ये देखें Z1 इधर जा रहा है और Z2 इधर जा रहा है. सो इसका मतलब है कि देयर इज नाउ अ लिंक ट्विस्ट, देयर इज एन एंगल अल्फा बिटवीन दीज टू. अच्छा, और इसको हमने मेजर कैसे करना होता है, अगर मैं यहां से देखूं, सो मैं 1 से 2 की बात कर रहा हूं, सो अल्फा आई, सो आई इज 2, सो 2 Z2 और Z1, Z2 और Z1 के दरमियान एंगल, ठीक है, I और I प्लस 1, ठीक है. सो सॉरी अल्फा I माइनस 1 की बात कर रहा हूं, तो I माइनस 1, I माइनस 1, सो 1 Z1 एंड Z2 के दरमियान एंगल विच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x1. I repeat, angle between Z1 and Z2, let me just write down here. Sorry, angle between Z1 and Z2 measured about x1. ये मतलब होगा हमारे इसके अंदर. अब देखिए x1 किधर जा रहा है, x1 is going into the board. So if I curl my fingers from Z1 to Z2, if I curl my finger, just have a look at my fingers. If I curl my fingers from Z1 जो कि ऐसे था, and I go to Z2 like this, so x1 has to go into the board or into the slide. So Z1 और Z2 के दरमियान एंगल कितना है, Z1 Z2 के दरमियान कितना एंगल है, 90 degrees. 90 डिग्रीज. एंड सिंस x1 के अराउंड कर रहा हूं तो x1 भी अंदर जा रहा है, मैंने Z1 को Z2 के ऊपर मैप किया, तो x1 इज गोइंग इनटू द बोर्ड विच इज द कन्वेंशन ऑफ माय x1. सो इसका मतलब है कि ये प्लस 90 का यहाँ पे एंगल होगा. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एंगल. सो दिस इज 90 डिग्रीज. अगेन लिंक ट्विस्ट दोनों के दरमियान कोई नहीं है, एंड देन दोनों के दरमियान ऑफसेट. So there is an offset between these two. Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है, क्योंकि ये ट्रांसलेट हो रहा है ना, तो Z2 is moving, जो आपका 2 फ्रेम है वो आगे मूव कर रहा है. So there is a distance between these two. ठीक है. So हम इसको so there is going to be a twist, or there is going to be a distance between these two which will be denoted by d2. और अगर मैं इसको let's see यहां से यहां इसके दरमियान मैं इसको कोई एक, जैसे यहां पे इसने L2 और L3 दिया हुआ है, लेकिन ये L2 जो है ये एक्चुअली सेकंड और थर्ड जॉइंट के दरमियान है. L2 सेकंड और थर्ड जॉइंट के दरमियान है, तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान अगर इसको मैं d की वैल्यू दे दूं, सो दिस इज गोइंग टू बी d2. एंड ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, इन दोनों के दरमियान एक्सिस, दोनों x के दरमियान जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज दोनों x में पैरेलल है. ये एक ट्रांसलेशन, वो क्या हम कहते हैं इसको, prismatic joint. It's a P joint, it's a prismatic joint, so there is no theta between these two. So
थर्ड के ऊपर आ जाएं, सो दिस विल बी बिटवीन 3 and 2, सो दोनों z's एक ही डायरेक्शन में है, सो देयर इज नो ऑफसेट बिटवीन दीज टू। अल्फा कोई लिंक ट्विस्ट नहीं है, 0। However, इन दोनों के दरमियान एक ऑफसेट है which is denoted by L2 here, so we will put L2 here, and axis के दरमियान चूंकि revolute joint है, so there is an angle which is called theta 3। हमने इसको theta 3 का नाम दिया हुआ है, इसको मैं theta 3 का नाम दिया। excuse me sir, जी जी सर इसमें जो लिंक 2 का है, अगर इसको हम उस जगह रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला है, नहीं, फिर आपका क्या होगा, नहीं फिर क्या होगा, फिर आपका जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप 2 को 1 के साथ कोइंसिडेंस रख देंगे ना, तो जो आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट में एक मूवमेंट है ना, वो फिर इसके अंदर नहीं आएगी। okay, ये बात समझ रहे हो? नो सर नहीं समझे, नहीं समझ रहे। देखिए अच्छा लेट्स सी, मैं यहीं से आपको एक चीज बताता हूं कि जो रेवोल्यूट जॉइंट आ गई सर, सॉरी सर, आ गई, आ रही है। ओके अगर किसी, मैं जस्ट आपके क्वेश्चन को रिप्लाई कर देता हूं ताकि किसी और को अगर समझना हो तो वो देखिए, जो रेवोल्यूट जॉइंट है इट विल ऑलवेज हैव अ थीटा, बिकॉज ये घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस, और ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ डी जो है वो नहीं होगा, बिकॉज दोनों के दरमियान डिस्टेंस बदल नहीं रहा। लेकिन जो प्रिज्मेटिक जॉइंट है विच इज prismatic joint है, it will always have a D because there is going to be a distance between these two joints, क्योंकि prismatic है, it has to move, so एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के दरमियान we can only identify कि इन दोनों ने मूव करना है, so there is going to be a distance between them, जिसको मैंने D2 से यहाँ किया है, but since it's a prismatic joint so it will not have a theta, so ये फर्क है इसके अंदर prismatic और revolute joint के। ठीक है जी, सो डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? जी ओके, सो लेट मी जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल, मैं इसको सिर्फ फिल इन कर देता हूं और फिर इसको आपने थोड़ा सा जरूर जाके देख लेना है। लेट्स सी, अगर मैं इसके वो बनाऊं, फ्रेम्स बनाऊं, सो फ्रेम इसका कैसे बनेगा, ये दिस इज अ रेवोल्यूट जॉइंट, तो इसका मतलब है कि इसका मैं जी इधर ले लेता हूं, ये भी एक रेवोल्यूट जॉइंट है, इसका जी बाहर आएगा, ये भी एक रेवोल्यूट जॉइंट है, इसका जी भी बाहर आएगा, सो दिस इज Z1, मैंने Z2 अब यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, और ये Z3 है, और इन दोनों के दरमियान इसका जो डिस्टेंस है ये L1 है, सो मैं आई एम जस्ट गोइंग टू फिल अप दिस फॉर यू, सो अगर, और देन ये Z1 भी और इसी के ऊपर मेरा Z0 भी होगा, सो Z1 Z2 मींस इस फ्रेम 0 एंड फ्रेम 1 दे आर कोइंसिडेंट एट वन प्लेस, frame 1 and frame 2 they are at a distance, frame 2 and frame 3 they are again at a distance, so मैं अगर if I want to write down these, so number 1, so 0 to 1 will be there is no twist between 1 and 2, 1 and 0 and 1, so this is 0, there is no link length involved, there is no offset involved, however there is an angle involved, so this would be theta 1, then the distance between, अच्छा अब देखिएगा कि इन दोनों के दरमियान there is a link twist, okay, so alpha I minus 1 क्या होगा, this will be 90, ठीक हो गया, then A minus 1 इनके दरमियान is L1, there is no offset and there is theta 2, अब आ जाए Z2 और Z3 के दरमियान which is 2 to 3, this was 1 to 2, 2 to 3 के दरमियान दोनों Z's के दरमियान there is no angle involved, so इनमें कोई twist नहीं है, but link length involved है, so link length will be L2, no offset involved, and the angle between them 2 and 3 के दरमियान theta 3 angle
अगर मैं यहाँ चला जाऊं तो ये थीटा 3 यहाँ पे आ रहा है, बट ये थीटा 3 इन दो के दरमियान शामिल नहीं है, दोनों के x2 और x3 के दरमियान थीटा 2 एंगल जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस एंगल वुड बी ओके जी। सो इस तरीके से आपने इसको, आपके सामने मैंने रिजॉल्व कर दिया है। आपके साथ जो मेरी एक रिक्वायरमेंट है वो, दिस इज एन एग्जांपल 3.5, दिस इज योर काइंड ऑफ रीडिंग असाइनमेंट, सर आप सर जी, थीटा ठीक क्यों नहीं था सर सवाल में? दिस इज योर रीडिंग असाइनमेंट विच इज गिवन इन योर बुक, और इसमें जो, जी मैं वापस आता हूँ आपके पास, लेट मी जस्ट फिनिश दिस ताकि ये वाला हमारा जो कवर हो जाए पूरा लेक्चर। सो रीडिंग असाइनमेंट जो है ये आपने ये पढ़ना है, आपकी बुक में एग्जांपल 3.5 है, एंड यू आर गिवन इन योर बुक डिफरेंट फ्रेम अटैचमेंट्स। जो मैंने आपसे बात की थी ना कि आप फ्रेम को अटैच जो कर रहे होते हैं तो उनमें आप जी की डायरेक्शंस या मूवमेंट की डायरेक्शंस जो है उनको डिफरेंट कर सकते हैं। सो ये आपने काइंडली इसको देखना है कि ये जो डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं ये कैसे आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। ये बात ठीक हो गई जी, आपको समझ आ गई ये वाली बात? Yes. ओके, अब आपका क्वेश्चन जी, लेट्स गो बैक, जी बताइए। वैसे ये थीटा एंड पे से थीटा 3 नहीं होगा? थीटा नहीं, 3 इसलिए नहीं है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, थीटा जो है हम किस किस के दरमियान ले रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस, ये 3 है तो x2 और x3 के दरमियान, ठीक है, यस x2 सर। और x3, एंड यस अबाउट सर। z1, अबाउट z3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यस ये सर। थीटा 3 इसके बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पिछले वाला जो जॉइंट जो, तो जो थर्ड जॉइंट है ना, देखिए जो थर्ड जॉइंट है वो सेकंड जॉइंट के साथ पीछे लिंक है, और आगे यस जो सर। मुझे एक नजर आ रहा है ग्रिपर, जो ग्रिपर नजर आ रहा है उसकी पोजीशन मैं विद नॉट विद द थीटा, बट उसकी पोजीशन मैं दे सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई, या वाई, हाँ एक्स और वाई में, क्योंकि जी तो बाहर आ रहा है, एक्सक्यूज मी सर। ठीक। चलिए सर जी जी बताइए बताइए, आपको आपको आवाज आवाज आ कट, रही सर? मेरी आवाज आ रही? ये सर आपकी आवाज आ रही है। जी सर जो आपने पहले एग्जांपल कराई थी, हाँ जी उसमें आपने यहाँ थीटा 3 लिखवाया था सेम मतलब कंडीशन में। जी जी, नहीं इसमें देखिए ये प्लेनर रोबोट नहीं है, अच्छा, ठीक है। लेकिन सर इससे फर्क क्या पड़ेगा उस सारी चीज पे, इससे मतलब कि इसके प्लेनर ना होने से उस थीटा नहीं का नहीं, क्या चल? देखिए देखिए Z1 Z2, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर राइट, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, मैंने इसमें गलत किया, बिल्कुल सॉरी। अच्छा मैं कुछ क्लास को खत्म करने की जल्दी में आई मेड दिस मिस्टेक, सो लेट मी गो बैक, लेट मी गो बैक एंड लेट मी करेक्ट इट। आप ठीक कह रहे हैं, दिस हैज टू बी, इसको मैं नहीं कर सकता रेस, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन नॉट, सो आई हैव टू
टेक द पेन, इसको मैं यहाँ से काट के इसको थीटा 3 करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस वाज माय मिस्टेक, मैं जरा डिफरेंट ओरिएंटेशन में चला गया। ठीक है जी। सो वी हैव 3 जॉइंट्स, 3 एंगल्स, और तीनों एंगल्स इसके अंदर आ रहे हैं। वी हैव 2 लिंक लेंथ्स, वो दोनों भी इसके अंदर आ रही हैं। एंड वी हैव 1 लिंक ट्विस्ट, वो भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है जी, वी आर नाउ गुड टू गो। तो आई एम सॉरी फॉर दिस चीज, दिस हैज टू बी थीटा 3। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ ये दोबारा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट जी। Okay, sir. A lot, ओके sir. अच्छा जी, बताइए और कोई सवाल किसी का? इफ देयर इज नो क्वेश्चन सो लेट मी जस्ट टेक योर अटेंडेंस। ऑल राइट।